میں نے اسکول کیا ہے، میں جنرل سیکرٹری امانات کالج کا، تو کسی کی دھمکی دینے سے میں آنا بند کر دوں گا؟ وہ احمق ہے جو دھمکی دے رہا ہے، وہ احمق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتے جذبات، میں ہوں بلال خان۔ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں فہیم اختر لندن صاحب جو ہے، اکثر میں نے ان کو پکچر کے حوالے سے پکچر کو ریفرنس دے دے کے اکثر میں نے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کا اکثر پروگرام بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے تصویر کے حوالے سے بات کیا ہے، اور آج مرشد آباد میں نواب بہادر انسٹیٹیوشن میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں فہیم اختر صاحب۔ آج ان سے ہم باتیں کریں گے۔ سر، آپ کو آج نواب بہادر انسٹیٹیوشن میں آپ کے فہیم اختر ادبی خدمات آج جو ہے سمپوزیم اور یہ آپ کا مشاعرہ ہونا ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں سید مہتاب جاں، تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا دسمبر میں، اور انہوں نے کہا کہ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو میں نے ان کو نمبر بھیجا اپنا، اور پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ادبی خدمات پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتنا فہیم اختر کو جانا ہے، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ میں نے جانا نہیں، میں نے آپ کو پڑھا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ آج کل کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بات کیا، پھر دعوت دی آنے کے لیے، تو ہم نے کہا بھائی گرمیوں میں تو ہم نہیں آ پاتے ہیں، چونکہ لندن میں آپ کو پتہ ہے رہتے رہتے عادی ہو گئے، تو سردی کا وہ ہوتا ہے، گرمیوں میں تکلیف ہوتی ہے آنے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، رمضان سے پہلے آ جائیے، تو ہم آ گئے، اور اچھا ہے انہوں نے انتظام کیا اس، اور اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے مسعود عالم صاحب، بڑا اخلاق محبت ہے ان لوگوں میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو ادب ہو یا کوئی ادب ہو، آج کل ادب میں لوگ جو ہیں کم دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن فہیم اختر کی ادبی خدمات پر جیسا مہتاب جان نے بتایا، کوئی 20-25 لوگوں نے پیپر لکھے ہیں، بہت سارے پروفیسر جیسے ڈاکٹر شہنور حسین آئے ہوئے ہیں رانی گنج سے، اور بہت سارے اسکالر آئے ہوئے ہیں، بہت سارے حیدرآباد یونیورسٹی سے آن لائن جڑے ہیں، میرٹھ یونیورسٹی جڑے ہیں۔ تو ایک اچھی بات ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ 25 برسوں سے جو میں مسلسل لکھ پڑھ رہا ہوں، تو اعتراف کیا گیا، اور اس بات کی اعتراف کیا گیا۔ ہاں، یہ نہیں لگتا کہ میں بہت خوش ہوں کیوں ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے خوش اس لیے ہوں کہ میرے علاوہ بھی جو لوگ لکھ پڑھ رہے ہیں، اور جائز طریقے سے، چونکہ آج کل پتہ ہے آپ کو ماحول بڑا خراب ہے، لوگ اثر و رسوخ اگر نہیں ہیں، خوش آمد نہیں کرتے، تو یہ سب کام نہیں لوگ کرتے ہیں جیسا مجھے لوگ بتاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی رائٹر ہیں جو واقعہ میں محنت سے لکھ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی اگر کتابیں ہیں، کام ہیں، تو لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سر، آپ لندن میں رہتے ہیں، اور لندن کا ماحول ہے، کہا جائے واک ان انگلش، رن ان انگلش، اسپیک ان انگلش، اور وہاں پہ اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک جو سوسائٹی ہے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی آپ نے قائم کیا، اور ایک اس سے جانب سے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدی پورے علاقے سے بات کی، بلکہ کلکتہ کا بات کیا جائے، تو ہمیشہ یہ جو صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ہمیشہ تیماہی شماہی پروگرام ہوتا رہتا ہے، مشاعرہ ہوتے رہتے ہیں، وباگ کے رسم و اجرا ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کہا جائے کہ آپ نے ایک پودا یہاں لندن میں رہ کے، دور رہ کے، یہ دوری آپ نے ثابت کیا، بلکہ میں ایز اے رپورٹر جو آبزرو کیا، آپ نے ثابت کیا کہ اگر کام کرنا تو دوری کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ لندن میں رہ کے اور ہندوستان میں کلکتہ میں جو ہے اردو پہ خدمات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا آپ کا جنون ہے؟ کیا ہے کہ جو آپ انگلش ماحول میں رہ کے، جہاں کا ہوا واتاورن ٹوٹلی انگلش ہے، انگریزی ہے، اور آپ اردو کو فروغ اتنا دے رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری جو پرورش ہوئی، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، وہاں اردو کا ماحول تھا، ہمارے گھروں میں وہ تغرے لگے رہتے تھے، اور اس میں علامہ اقبال کے اشعار ہوتے تھے، تو بچپن سے تو یہ سب دیکھتے ہم نے سیکھا۔ پھر اردو میڈیم اسکول میں پڑھائی کی، قومی جذبہ بہت ہے، جس کی ایک وجہ ہے کہ اردو زبان سے میں کرتا ہوں۔ میں تو یہ نہیں، آج کل ہر کوئی محبت کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ کتنے رنگ بدل کے لوگ محبت کر رہے ہیں۔ محبت کر رہے ہیں، لیکن صرف محبت تو دکھانا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے نہیں بول رہا ہوں سر، آپ جو ہے بلکہ دیکھا جائے انگلش ہے، اور تھوڑا سا انگلش آ جاتا ہے تو اردو کو لوگ بھول جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ میرے اردو بہت کمزور ہے، مجھے انگلش بولنا آتا ہے۔ اور آپ لندن میں رہ کے انگلش کو نہیں بھولے ہیں، اردو میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ مطلب اکثر اپنے زبان کو بھول جاتے ہیں، کلچر کو بھول جاتے ہیں۔
लेकिन आपको क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको भूलने नहीं दे रहे, बल्कि इसके लिए आप काम कर रहे हैं? आपका अदारा सूफी जमील अख्तर लिटरेरी काम कर मैं अकेला नहीं हूँ। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी में कोई 35 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान से, और हमने सिर्फ कलकत्ते में नहीं काम किया है। कलकत्ते में इसकी दाग बेल्ट रखी, कैसर शमीम थे, मेरे मरहूम दोस्त शकील अहमद खान थे। कलकत्ते में ज़रा मैं मायूस हो गया हूँ। वहाँ पर एक अजीब पता नहीं सियासी माहौल है या ज़ातियात है, तो हमारे ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, खामखा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं है। ये इल्ज़ाम तो हम लोग तक भी आई बात। जी जी जी, मुझे पता है। इसे क्या कहेंगे कि जब एक शख्स शख्सियत बन जाता है या मशहूर हो जाता है तो लोग इस तरह के लोग ये करने लगते हैं? नहीं, देखिए मैं तो मशहूर नहीं मानता, मैं मशहूर नहीं हूँ। देखिए मेरे तरह कई लोग लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या सुना कि फ़हीम अख्तर उनके खिलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है? आप इस तरह का तो अगर फ़हीम अख्तर नहीं कर रहा है तो फ़हीम अख्तर के ख़िलाफ़ ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात। और मुझे हैरानी इस बात की है कि इन्हीं लोगों को कलकत्ता की महफिलों में मेहमान खुसूसियत सदारत का ओहदा दिया जाता है, तो ये सारे लोग उसमें कसूरवार हैं। बल्कि मीडिया के सामने जब वसीम बरेलवी साहब को आपने अवार्ड से जनरल उस वक्त अपने बात रखा था कि हमारा प्रोग्राम जो है होना था, प्रोग्राम को मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था। ये हमने वो हकीकत थी, एक ऐसा वाक़या आया था, हमारा प्रोग्राम जो है उसको सबताज करने की कोशिश की गई। वो साहब जो हैं उन्होंने की, उनका नाम भी आया, हमारा कालम अखबार मशीन में बंद करवा दिया गया। हाँ, कि आपने बात जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रखा था उसकी वजह से कई अरसे से ये चल रहा था। एक तबका है वहाँ जिसको अपने एहसास कमतरी का शिकार है, तो वो एहसास कमतरी के शिकार होने की वजह से वो ये सब करते रहते हैं। लेकिन फ़हीम अख्तर को सिर्फ कलकत्ता से क्या है, वो तो देखिए मुझे खुद पर यकीन है, मैं खुद आपको जब कॉलम बंद कराया गया था आपको कैसा लगा? कुछ तकलीफ़ हुई, और उनके जो मालिक वसीम अलग वो तो बहुत बेइंतहा बयान करते हैं, लेकिन उनके जो बेटे साहब हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, उसको क्या सवाल पूछना चाहिए क्या मामला है। और आपको सबसे दुख की बात बताते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ 2 खतूत उसमें शाये करवाए गए और उसको अखबार ने शाये भी किया। आपके खिलाफ जी लिखा गया और पब्लिश किया गया, और जो शख्स लिखवाया, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन देखिए सच होता है सर, झूठ होता है, तो दुनिया जानती है कि क्या जो चीज़ें हुई, क्या इससे आपका इरादा और हौसला पस्त हुआ और मजबूत हुआ? देखिए मेरा इरादा पहले ही पस्त नहीं हुआ, पहले मजबूत नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि उर्दू का मेरे ऊपर कर्ज है, तो मरते दम तक मैं करता रहूँगा, चाहे मुर्शिदाबाद हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, जहाँ। हाँ, मेरे अंदर लालच नहीं है, मैं उर्दू के खातिर पैसे नहीं लेता हूँ, लूँगा भी नहीं। इस ज़ुबान ने फ़हीम अख्तर को फ़हीम अख्तर बनाया, मैं कैसे इस ज़ुबान के नाम पे पैसे लूँगा? ऑब्जर्व किया है और सुना तो कि अक्सर आप जब भी आप इंडिया आते हैं तो ये उर्दू को कोई प्रोग्राम होता है जिससे उर्दू को फ़रोग मिले, उसके लिए आप अपने शहर में आते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए आप कलकत्ता तो मेरी पैदाइशी है ना। जी। कलकत्ता मैंने स्कूल किए हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी मौलाना कॉलेज का, तो किसी की धमकी देने से मैं आना बंद कर दूंगा? वो अहमक है जो धमकी दे रहा है, वो अहमक है जो भी इस तरह की बातें कर रहा है मेरे खिलाफ, कोई दलील नहीं है। भाई आप ये बताएं कि बेकर हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट रिज़ाइन कर दिया, ये अखबार में मैंने खबर पढ़ी, कोई फाइल गायब हो गई, उसके बारे में आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते उससे? जाइए अब जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म तो हम लोगों को आवाम की राय देनी चाहिए ना, तो ऐसा क्यों हुआ? इस बात पर भी तो बात होनी चाहिए ना। फ़हीम अख्तर जो है वो कलकत्ता नहीं आए, प्रोग्राम नहीं करे, आपके चैनल के तहत बोल रहा हूँ, ये इनकी गलत फहमी है। फ़हीम अख्तर जब तक ज़िंदा है ज़िंदगी रहेगी। कलकत्ता वालों ने बहुत प्यार दिया और कलकत्ता वाले प्यार देते हैं। ये चंद बिके हुए लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उनके प्रोपेगेंडा से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। आपको बदनाम करना या आपके कहा जाए क्या ये उर्दू को नुकसान माना जाएगा? देखिए अगर कोई दलील नहीं है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जो लोग हमको फॉलो करते हैं, जो हम तो नई नस्ल को ज़्यादा करते हैं, तो उनको उनके जहन में जहर ये क्या है, ये वो लोग हैं, इससे हम थोड़ा सा मतलब के फ़िक्रमंद हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
वो एक के बाद वो चाले चल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं गलत हूँ तो आप आइए बात कीजिए। अच्छा, मेन वजह क्या हो सकता है कि इतना आपके खिलाफ इस तरह का बातें करना, क्या खास वजह कुछ? आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका का जो सदर है ट्रम्प, वो जो कर रहा है, तो आप तो जवाब दीजिए ना। ये ट्रम्प के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ये लोग, तो इनका तो अंजाम वही होगा। गलत लोग हैं ना, गलत लोग हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, लोगों के कान भर रहे हैं, हमारा कॉलम बंद करवा रहे हैं। हमारा कॉलम कहाँ बंद हुआ है? लेकिन आपके आधार से तो और अच्छे और भी काम हो रहे हैं, हमेशा सरगर्म हो। बिल्कुल काम हो रहा है। हमारी 18 किताबें पब्लिश हुई हैं और 5 किताबें और आ रही हैं। मज़ामीन हमने लिखे हैं, 25 बरसों से मेहनत की है, हमने गुफ्तगू की। आपने आज हमारी तकलीफ सुनी, क्या कहा मैंने? कहीं से आपको लगा कि ये आदमी जो है खुशामदी है और पैरवी करता है या खुशामद करके नौकरी पा ली है? चूँकि मैं ऑन द एक्चुअली कैमरे में हूँ, मैं एक्चुअली अपनी बात रख रहा हूँ, कई बात है तो अपनी बात। मेरा तस्वुरात आपके मुतालिक ये है कि आप लंदन से रह के उर्दू को जो खिदमात दे रहे हैं अपने ज़रिए और अपने अदारे के ज़रिए, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का बात रखा, इससे मैं मुतासिर हूँ। चूँकि हमारी उर्दू मीडियम नहीं रही, लेकिन उर्दू से मुझे लगाव है। तो आप जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा लगता, कई लोगों से बातें की, इन्होंने कहा कि जो फ़हीम अख्तर साहब के ऊपर अगर कोई इस तरह से बुहतान लगा रहे हैं तो हमें काफ़ी दुख है, क्योंकि वो लंदन में बैठ के उर्दू को फ़रोग दे रहे हैं। कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कहा है, उनको नाराज़गी है, वो उस अखबार से नाराज़ है, उस शख्स से नाराज़ है, उस शोबे उर्दू के जो गैंगस्टर जिसको मैं कहता हूँ उनसे नाराज़ है। अब उनकी चलेगी नहीं। तो क्या लगता है कि आपके जो खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं, जितना करेंगे और बदनाम हो जाएंगे? नहीं, वो खुद बदनाम हो रहे हैं, वो सर उठा नहीं सकते, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक मजमून उनका बताइए आप कहीं पर पढ़ा जाता है? मैं तो उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं दलील बात कर रहा हूँ। मैंने गुनाह ये किया है कि मैंने ईमानदारी से उर्दू ज़ुबान के लिए जो मुझसे बन पड़ा, मेरी पूरी टीम है, हम 1-2 लोग नहीं हैं, कई लोग हैं। अब इनको अगर नाराज़गी है तो ये उनका मसला, मेरा थोड़ी मसला है। उनकी नाराज़गी, अगर नाराज़गी है तो बात कर लें हमसे। और सर लास्ट सवाल ये है कि आज हम लोग नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं, और आपके जो फ़हीम अख्तर के अदमी खिदमात के ऊपर जो सिम्पोजियम और मुशायरा में, आप क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इत्तेफाक था कि दिसंबर में हमारे पास फ़ोन आया और ये प्रोग्राम तहत वाला हुआ, और मैंने उनसे बहुत खरा हमने पूछा कि भाई तुम फ़हीम अख्तर को जब जानते हो तब करो। चूँकि देखिए, मैं आज से नहीं, जब कलकत्ते में था, पढ़ाई करता था, उस वक्त भी किसी प्रोफेसर से सब मानते थे हमको। मैं आपको बता रहा हूँ, दामाद मैं बनता दामाद मैं बनता, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो है ना, अपनी कुटिया को बचाइए। आप शीशे के घर में रह करके पत्थर ना फेंकिए। आप जानते हैं मुहावरे का मतलब? जी। फ़हीम अख्तर का सर जख्मी हो सकता है, लेकिन फ़हीम अख्तर का सर चूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका रब उसके साथ है। चूँकि हमने ये, मैं बता दूँ नाजरीन की जनाब फ़हीम अख्तर साहब से और बातें होंगी और तफसीली इंटरव्यू होगा। चूँकि आज एक हम प्रोग्राम में हैं, यहाँ में हमने बताया कि नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं, हमने एक छोटा सा बाइट लिया है, और जो बहुत तफसीली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप ज़रूर बोलते जज्बात पे आप देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।